Today we'll discuss about packing efficiency in solids. So what is packing efficiency? It is the percentage of total space filled by the particles in the crystal. This is Pythagoras theorem. A square plus b square is equal to c square. This is volume of sphere 4 by 3 pi r cube. And this is volume of cube, that is side square. ये तीनों formulas आपके काम आएंगे, आपको याद होने चाहिए. These are the three types of simple cubic of unit crystals. Okay, and we'll study one by one. First we'll study the packing efficiency in primitive structures. So this is a cubic simple cube. A is its side, which is equal to 2r. Students, okay, now we'll study the packing efficiency in simple cubic unit cell. Simple, or we also call primitive simple cubic unit cell. So in simple cubic unit cell, the atoms are present only at the corners. In this unit cell, I have marked only these two atoms. Okay, only two are required to calculate the packing efficiency. So these are two spheres, and let the radius of each sphere be r. This is also r, and this is also r, and this is the side of the cube. Okay, so let it be A. Okay, now packing efficiency is volume of one atom over volume of cubic unit cell multiplied by 100. So percentage will come. What is volume of one atom? Atom is a sphere. So what is the volume of a sphere? We have already studied 4 by 3 pi r cube. Okay, and what is the volume of the cubic unit cell? It is a cube. For this you should know the length, the side. So A is equal to 2r. What will be A cube? Cube of 2r. So A cube will be equal to 2 into 2 into 2, 8r cube. So the side cube will be 8r cube. Volume of cubic unit cell is cube of the side, that is 8r cube. Okay, so r cube will cut with r cube into 100. 4 will cut with 8, so 3 will come down. Pi r over 3 into 2 into 100, that is सॉरी r नहीं है, r तो कट गया यहाँ पे, r क्यूब कट गया. पाई ओवर 3 into 2, that is pi over 6 into 100. So when you calculate it, it comes out to be 52 approximately 4%. So this is the packing efficiency of simple cubic unit cell. Is it clear? Simple unit cubic cell की जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है 52.4, इसको याद भी कर लेना. ठीक है, और कैसे आई समझ आया? हमें पैकिंग एफिशिएंसी ढूंढने के लिए टोटल वॉल्यूम जो क्यूब की है वो पता होना चाहिए, और स्फीयर्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो पता होना चाहिए. तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 1. ठीक है, इसलिए हमें एक ही स्फीयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. तो एक स्फीयर की वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होती है 4 by 3 pi r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8r क्यूब. 8r क्यूब कैसे आया समझ आया? a जो है वो किसके बराबर है? साइड 2r के बराबर है. तो a क्यूब क्या होगा? 8r क्यूब. सो वी विल डिवाइड इट एंड मल्टीप्लाई बाय 100. द आंसर इज 52.4%. ओके, इज इट क्लियर? Packing efficiency 52.4%. So this must be clear to you. Now we'll study the packing efficiency in cubic body centered structures. So this is cubic body centered structure. One atom is in the center and other is body centered cubic cell. Okay, you know that number of atoms per unit cell in body centered unit cell is 2. Okay, now packing efficiency of body centered unit cell will be 2 into volume of sphere over volume of cubic cell into 100. ये 2 क्यों आया समझ आया? क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, इसलिए जैसे उसमें प्रिमिटिव या सिंपल वाले में हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है.
बॉडी सेंटर्ड के केस में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का फॉर्मूला ओवर ए क्यूब क्यूब का फॉर्मूला मीन्स वॉल्यूम, ओके। 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर की वॉल्यूम, ए क्यूब क्यूब की वॉल्यूम। अब हमें ए की वैल्यू ढूंढनी है, जो हमारा कैलकुलेशन पोर्शन है उसमें हमने ए की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100 भी है, ठीक है, इंटू 100 है, वो थोड़ा मैंने दूर लगा दिया, ये भूलना नहीं है, 100 होगा तभी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसको अगर समझ गए तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, कैलकुलेशंस भी। देखिए ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब है जिसके सेंटर में एक स्फीयर है और 8 कॉर्नर्स में भी है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं, ये वाला और एक ये वाला जो एक ये डायगोनल के एंड्स पे है, ठीक है, बाकी नहीं किए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये अब आप ये समझिए इसको, ये क्या है, इसको अगर आप एक रूम मानते हैं, आप एक रूम में खड़े हैं, नीचे खड़े हैं इस कोने में, तो ऊपर छत की तरफ देखोगे ऑपोजिट साइड तो एक ये कोना दिखाई देगा। अगर इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो एक डायगोनल जो है बॉडी डायगोनल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोर वाले कॉर्नर सामने वाले से एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो फ्लोर डायगोनल है, ठीक। तो जो यहाँ पे सी दिखा रखा है इसमें, इस ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है यहाँ पे, तो ये जो है ये वाला डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है। तो इसमें कितने रेडियस आ रहे हैं, देखिए इस स्फीयर का रेडियस 1, ये पूरा डायगोनल है तो इसमें 2 हो गए, और एक इसका रेडियस, तो सी जो है किसके बराबर है, 4r के बराबर है, ये याद रखना है आपको। और अब हम पहले इस ट्रायंगल से EFD से कैलकुलेशन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बहुत सिंपल है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं दोनों, मैंने थोड़ी शेडिंग कर दी है, ये पिंक और ये पर्पल, ताकि क्लियर हो जाए। ये समझ आया ना, ये फ्लोर पर जो डायगोनल बनता है उससे बना हुआ ट्रायंगल है, ये जो रूम में आप खड़े हो तो जो ऑपोजिट कॉर्नर के साथ छत वाले के साथ बन रहा है वो बॉडी डायगोनल है। तो इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम दिस फिगर, ओके। सो इन दिस फिगर, if we consider the triangle AFD, its hypotenuse is C and this side is A and this side is B. The side C or the hypotenuse C has how many radius lengths? 1, 2, 3, 4. So C is equal to 4R. R क्या है, रेडियस है, तो ये एक स्फीयर का रेडियस ये हो गया, इसका ये डायमीटर आ रहा था 2 रेडियस और इसका एक, टोटल 4R। सो C इज इक्वल टू 4R। और इस ट्राइंगल में EFD में एक साइड A है, ये भी साइड A है ये वाली, और हाइपोटेन्यूज इसका B है। सो कैलकुलेशंस आर सिंपल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट वी विल कंसिडर ट्राइंगल EFD। इन ट्राइंगल EFD B square is equal to A square plus A square, A square plus A square, that is 2A square. But and this C square is equal to, इस ट्राइंगल में AFD वाले में C square is equal to B square plus A square, B square plus A square। तो B square की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, B square की जगह 2A square लिख दो, तो C square की वैल्यू आ गई 2A square plus A square is equal to 3A square। From this you get C square is equal to 3A square, या C is equal to √3 into A। पर यहाँ से जब हमने देखा था तो C किसके बराबर था, 4R के, therefore √3A is equal to 4R और A is equal to 4R over √3। तो A की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 4R over √3। अब A की ये वैल्यू, इसका क्यूब कर लेते हैं पहले, A क्यूब इज इक्वल टू 4R क्यूब, 4R over √3 क्यूब। तो A क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये A क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज पुट की, देखिए उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर आया 68%, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द वैल्यू 68%। क्यूबिक सेल
and efficiency is 68% approximately. Now we'll study the packing efficiency in face-centered structures. So this is the figure of face-centered structure. Okay. Students, now we will calculate the packing efficiency of face-centered cubic cell, that is HCP and CCP. This is the diagram required for the calculation. As you know, in face-centered cubic cells, one atom is present in the center of each face. So this is the atom in the center of the face. This is corner atom and this is atom at the another corner. Rest I have not drawn. Okay. Now, for more clarity, I have taken this portion, this shaded portion out here. Now look here, this forms a right angle triangle with B as its hypotenuse. Now B, it has 4 radius lengths, 1, 2, 3, 4, and these sides are similar, A each. Now using Pythagoras theorem, B square is equal to A square plus A square, that is 2A square. B is equal to root 2A, but we know B is also equal to 4R, so root 2A is equal to 4R, or A is equal to 4R over root 2. Now we know in face-centered cubic cell, the number of atoms per unit cell is 4, है ना? पहले हमने ये पढ़ा हुआ है, 4 होते हैं इसमें. इसलिए हम जब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये 4 समझ आया ना कहाँ से आया, क्योंकि पर यूनिट सेल 4 एटम्स होते हैं, इसलिए हम जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको 4 से करेंगे. बॉडी सेंटर्ड में हमने 2 से की थी, सिंपल क्यूबिक में सिंगल था. और नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, it is similar as to that which we already calculated. So here 4 into 4 pi r cube, 3 into a cube की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से डाल दी. ठीक है, यहाँ से a cube की वैल्यू डाल दी. a cube की वैल्यू जैसे ये थी ना, a cube जो था वो 4 को हमने 4 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2. तो ऐसे लिखने से ये वैल्यू आ जाती है ए क्यूब की, 2 रूट 2 आर होल क्यूब. सो वी हैव पुट दिस वैल्यू एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस द आंसर कम्स आउट टू बी 74%. सो द बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी इज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स. ओके, सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं ये वाले फेस सेंटर्ड, क्योंकि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है. ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 3 numerical parts of this portion? Do practice yourself, and if you have any doubt, do message me. Okay, thank you. So this is the figure of face-centered cubic cell and packing efficiency.